So, today we are learning examination of abdomen. 4 part: inspection, palpation, percussion, ready, and auscultation. But to avoid the unnecessary long, we are just focusing on right now the palpation of abdomen. So it has 2 part: superficial and deep. Ready? But just before poking the patient, don't forget he is a human. You have to take consent, information and greet. હું તમારા પેટની સાદી તપાસ કરવાની છું, આનાથી તમને કોઈ નુકસાન થશે નહીં, તો શું હું કરી શકું? રેડી? ફાઇન. So superficial palpation is just for the abdominal wall, tenderness and rigidity, and deep palpation is for what? Organ palpation. Okay. So in superficial palpation, umbilicus, making an umbilicus center, you can go either in a clockwise or in a anti-clockwise. Okay. And see at the face of the patients. Okay. Patient ना चेहरा सामू जोवानो, patient का face देखना है. Ready? Fine. But my preferred method is, we already know the 9 quadrants of abdomen. Okay. So we can start with the rightmost column, starting from the lowermost going to the uppermost. Okay. So we can start from right iliac fossa and go with uppermost, or we can go clockwise and anti-clockwise. After palpating the all 9 quadrants, we will say there is no tenderness and no rigidity during superficial palpation found. ऐसा नहीं बोलेंगे कि rigidity normal, tenderness normal, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है? Fine. So now we are starting with the deep palpation. Okay, we will start with palpation of liver. So just remember, we will start with the right iliac fossa and keep your edge of hand parallel to the borders of the ribs. Okay, it should be parallel with the border of the ribs, because that is how the shape of the liver is, hidden behind the rib borders. Okay, so now start palpating from right iliac fossa upwards. Okay, you are moving upwards. Wait for the inspiration. Move during expiration, and during inspiration, liver will come downward and hit the edge of your hands or your fingers if it is enlarged. If it is not enlarged, slowly you will move towards the rib. Okay, तो डायरेक्ट रिब आ जाएगा. अगर लिवर एनलार्ज नहीं है तो आपके हैंड्स को हिट नहीं करेगा. You have to remember that liver moves with the inspiration. So this was the traditional method, simple method, okay, for palpation of a liver. Fine. Now we are going to see. Assume this is the case of ascites और पूरा abdominal पानी से भरा हुआ है ना? So there is so much fluid. So abdomen is like a round ball full of water. So now what we are doing, ऐसे सिंपल प्रेस करने से तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि अपन को नाउ वी हैव टू गिव एंटायर वेट ओवर द हैंड्स, है ना? दूसरा हाथ रख के अपने डोमिनेंट हेड पे पूरा बॉडी एज देना है. योर हैंड्स शुड बी स्ट्रेट एट द एल्बो जॉइंट, ताकि आपका पूरा बॉडी वेट. अभी आप जब फोर्स रिपर्कस करेंगे तो फोर्स का रिएक्शन पानी में से ऐसे लिवर पे जाएगा, एंड लिवर विल बाउंस एंड हिट योर हैंड इफ लिवर इज एनलार्ज. सो दिस इज कॉल्ड डिपिंग मेथड. DIPPING, डिपिंग मेथड, है ना? प्रिंसिपल सेम है. बॉर्डर ऑफ द हैंड अगेन पैरेलल टू द बॉर्डर ऑफ द रिब्स, बट यू आर गिविंग एक्स्ट्रा वेट, योर बॉडी वेट, बिकॉज देयर इज so much fluid inside the abdominal cavity. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डिपिंग मेथड. नाउ थर्ड मेथड की बहुत ही मिनिमल एनलार्जमेंट है ना? और आपको जानना है तो आप थोड़े पेशेंट के इस तरफ चले जाइए, उनके हैंड साइड, राइट साइड ही खड़े रहिए, और अपने हैंड्स का हुक बना के बॉर्डर के नीचे ऐसे डालिए, लाइक एन एंकर, है ना? जैसे आप उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. और फिर उसको बोलिए फॉर डीप इंस्पिरेशन. और अभी देखना किधर है? पेशेंट के फेस की तरफ. अगर उसका लिवर एनलार्ज है और जब वो डीप इंस्पिरेशन करेगा तो उसका लिवर आपके उंगलियों के हुक के साथ टकराएगा, एंड ही विल हैव अ वेरी पेनफुल एक्सप्रेशन ओवर हिज फेस.
और दूसरा कि वो लीवर है कि नहीं एनलार्ज मिनिमल, वो जानने के लिए पहले तो आपको ये हुकिंग मेथड नॉर्मल पर्सन में करना पड़ेगा। आप जब 10-15 लोगों में ये हुकिंग मेथड से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच्ची में आपको जो उंगली फील कर रही है वो एब्डोमिनल वॉल है कि वो सच्ची में लीवर मिनिमली एनलार्ज है। ठीक है, रेडी। तो इससे एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस का जो स्टेज होता है जब थोड़ा सा लीवर एनलार्ज होता है लेकिन बहुत पेनफुल होता है, इससे ये पता चलेगा हुकिंग मेथड से। सो नाउ वी हैव 3 मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओके, डिपिंग मेथड एंड हुकिंग मेथड। सो ये सेम मेथड अगर मैंने सामने की ओर किया लेफ्ट हैंड, है ना, तो वो स्प्लीन के लिए, देखो स्प्लीन का एक्सिस इस तरफ है ना, कहां से, ये अगर आप ऐसा सोचे कि ये ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे राइट साइड की ओर आ रहा है, ठीक है, तो अभी भी राइट साइड ही खड़ी हूं पेशेंट के, आई विल स्टार्ट पाल्पेटिंग फ्रॉम द राइट iliac fossa एंड आई विल गो अपवर्ड अप टू द लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। तब कब तक, जब तक कि मुझे स्प्लीन पाल्पेट नहीं होती, या तो मेरा हैंड एज लेफ्ट बॉर्डर तक नहीं चला जाता, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ व्हाट, रिब्स, ओके। अगेन सेम प्रिंसिपल, वी विल मूव ड्यूरिंग expiration our hand, expiration of whom, expiration of patient, and during inspiration we will keep our hand steady and we will wait for spleen to come and hit our hand। अभी देखो, अभी वो स्प्लीन है कि किडनी है कैसे पता चलेगा, है ना। तो अभी मैं किडनी का कर रही हूँ पाल्पेशन, मेरा एक हैंड जो है मेरा राइट हैंड डोमिनेंट है, मेजर हैंड है, तो मेरा लेफ्ट हैंड मैंने पेशेंट के पीछे डाला, पीछे से पुश किया तो किडनी आगे की ओर आएगी, है ना, और ऊपर की ओर से आए पाल्पेटिंग, जैसे आपने बलून जो है पानी का भरा उसके अंदर बॉल डाला और जैसे आप फील कर सकते हो रबल बॉल को, ऐसे अगर किडनी का स्वेलिंग है तो आप दो हाथों के बीच में फील कर पाओगे, उसको बोलते हैं बेलोटिंग, है ना, बेलोटिंग मेथड। सो दिस इज अ बाय मैनुअल पाल्पेशन ऑफ अ किडनी और अ बेलोटिंग मेथड। ठीक है, रेडी। अभी ये किडनी का है, स्प्लीन का कैसे पता चलेगा, लीवर का है राइट साइड या राइट साइड किडनी का है कैसे, तो किडनी का नेवर मूव्स विथ इंस्पिरेशन, लीवर का विल मूव विथ इंस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर इंस्पिरेशन के साथ हिल रहा है तो या तो वो लीवर का स्वेलिंग है या तो वो स्प्लीन का है। अभी देखो द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, वो लेफ्ट साइड खड़ी है, मैंने इधर राइट साइड से करूंगी तो वो हुकिंग मेथड ऑफ वो हो गया, और ये सामने को स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग हुकिंग मेथड फॉर स्प्लीन। ठीक है, तो अगर पेशेंट का स्प्लीन एनलार्ज है मिनिमली, तो जब वो डीप इंस्पिरेशन करेगा तो उसको इधर फिंगर के टिप पे टच होगा, तो इट विल बी अ हुकिंग मेथड फॉर स्प्लीन। तो सिमिलर ट्रेडिशनल मेथड फॉर स्प्लीन, है ना, अगर मैंने अपना बॉडी वेट डाल के राइट iliac fossa से पाल्पेट करते करते वहां तक गई लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम तक, तो इट विल बी अ डिपिंग मेथड ऑफ स्प्लीन। पूरा बॉडी वेट डालना है तो खास ध्यान रखिए एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, जैसे आप वो बीएलएस में करते हो ना, सीपीसीआर में हार्ट को वेट देने के लिए, सिमिलर हैंड शुड बी स्ट्रेट एट एल्बो। और अगर स्टूडेंट ने उस तरफ से वो जो किया था दैट वाज अ हुकिंग मेथड। तो 3 मेथड फॉर लीवर, 3 मेथड फॉर स्प्लीन पाल्पेशन के, अगेन ट्रेडिशनल, डिपिंग एंड हुकिंग मेथड। अभी हम क्या करेंगे, ये है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। तो 1 से लेके 5 तक, अगर स्प्लीन लेफ्ट साइड से बढ़ के राइट iliac fossa तक पहुंच गई है तो इट इज अ 5, अम्बिलिकस के ऊपर अगर है तो वो 3, और टिप के पास 1, और 2 और 4 बीच में है, तो 1 2 3 4, 1 नियर द रिब, 2 इन बिटवीन अम्बिलिकस एंड रिब, 3 एट द अम्बिलिकस, 4 इन बिटवीन फोसा एंड अम्बिलिकस, एंड अप टू द फोसा पहुंच गई है राइट iliac fossa, तो इट इज अ ग्रेड 5। तो ये 5 एनलार्जमेंट। काला आजार है, फिर थैलेसेमिया का है, उसमें मासिव एनलार्जमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा इन योर पीडियाट्रिक एंड मेडिसिन टर्म्स। ओके, काला आजार हमारे यहाँ नहीं होता है, बांग्लादेश मतलब उस साइड ज्यादा होता है ना, ओवर द ईस्ट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम यस नाउ वी आर डूइंग व्हाट इज अ परकशन। तो देखिए आपको मैं पहले ये वीडियो स्टॉप करके बताना चाहूंगी कि परकशन के आपको कौन सा प्लेक्सर है कौन सा प्लेक्सीमीटर है वो खुद पढ़ना है, पर यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर डूइंग व्हाट, फर्स्ट वी विल डू परकशन ऑफ लीवर। तो लीवर के 2 बॉर्डर है, अपर और है ना लोअर, तो वी आर स्टार्टिंग परकशन फ्रॉम द अपर बॉर्डर। तो उसके पहले सबसे पहले अपन को क्या करना है, वो अपना स्टर्नल एंगल ढूंढना है। तो सबसे पहले सुप्रास ये स्टर्नल नॉच, उसको पाल्पेट करने का आधा मार्क, फिर वो स्टर्नल एंगल पाल्पेट करने का आधा मार्क, फिर उसके बाद सेकंड इंटरकोस्टल जो स्पेस है उसके अंदर अपने अपनी फिंगर घुसाई
आधा मार्क। अभी परकस करते टाइम दूसरी फिंगर्स टच नहीं करे, सिर्फ वो जो आपका फ्लेक्सीमीटर है, जो परसेप्टर है, वही टच करे। ओके, मिडल फेलेंस आप करें तो नीचे लंग्स है तो इट इज रेजोनेंट, है ना, लंग्स है, देयर एयर कैविटी रेजोनेंट। तो जब आप लंग्स के ऊपर से लीवर आ जाएगा अराउंड इन सिक्स्थ, है ना, हम मिड क्लेविकुलर लाइन पे सेकंड से थर्ड फोर्थ नीचे आ रहे हैं करते हुए परकशन, तो एट द सिक्स्थ मिड क्लेविकुलर लाइन, सिक्स्थ इंटरकोस्टल प्लेस, लीवर विल गिव डल नोट। और ऐसा सिर्फ इधर करना है ऐसा नहीं है, अगर आपको पूरा लीवर का अपर बॉर्डर करना है तो फिर आपको ऐसे सिमिलरली आपको इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे भी देखना पड़ेगा, मिड एक्सिलरी लाइन पे भी देखना पड़ेगा, है ना, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन और सुप्रास्केपुलर लाइन, सभी में ऊपर से नीचे हुए नीचे आपको परकस करते लीवर डलनेस करना है, जैसे कि आप लंग्स बॉर्डर करें ना वैसे ही सिमिलर प्रोसेस। ओके, तो ये आपने मिड क्लेविकुलर लाइन पे लीवर का अपर बॉर्डर लोकेट किया, इट इज अ सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, हो गया ना, उधर पर आप बॉल पेन से पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप क्या करें, अभी आप नीचे से हम लोग देखेंगे कि लीवर कहाँ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट इलियाक फोसा से अपवर्ड करते हुए जाएंगे परकशन। तो जैसे आपको पता है कि पेट के अंदर क्या है, इंटेस्टाइन्स है ना, एब्डोमेन में, सो दे आर द क्लोज कैविटी स्ट्रेच बाय एयर, है ना, थिन वॉल्ड स्ट्रेच बाय एयर, तो दे आर गिविंग साउंड इज अ टिम्पेनिक। ओके, तो टिम्पेनिक से अगर लीवर एनलार्ज होगा तो इट विल बी डल नोट, पर क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान है, इसका लीवर एनलार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट वाटर आ जाती है रिब्स की एंड इट विल गिव बोनी रेजोनेंट। तो टिम्पेनिक से बोनी रेजोनेंट मींस नो लीवर एनलार्ज, अगर टिम्पेनिक से डल तो मींस लीवर इज एनलार्ज। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको साउंड, पर अगर साउंड नहीं सुनता है फिर भी आप अपनी उंगली पे जो आपको फील हो रहा है उस वाइब्रेशन को भी आप नोटिस करें। पेट के ऊपर जो टिम्पेनिक है उसका वाइब्रेशन जो इधर फील होता है दैट इज अ डिफरेंट, रेडी, है ना। फिर आपको बेंच के ऊपर जो रेजोनेंट साउंड, बोन पे जो रेजोनेंट, दैट इज अ डिफरेंट वाइब्रेशन, रेडी। तो ये हो गया लीवर का परकशन। ऐसे ही सेम अगर हमने राइट इलियाक फोसा से चालू करते हुए परकशन अगर हम इधर तक गए, है ना, ये लेफ्ट के तरफ तक गए स्प्लीन तक, तो इट विल बी अ परकशन फॉर स्प्लीन। पर अभी मैं परकशन में आपको कुछ साइन आपको एलिशिएट करके बताती हूँ। ये साइन किसके लिए, हमारे एसाइटिस के लिए है। ठीक है, रेडी। तो एसाइटिस के लिए देखिए, अगर सिर्फ एसाइटिस यानी क्या कि पेट में पानी भरना, तो जनरली हमारे जो केस होते हैं वो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, तो उसमें है ना लिवर खराब हो जाता है, तो एसाइटिस जनरली हमारे यहाँ टीबी वाले पेशेंट में और लिवर के जो डिफॉर्म उसके पेशेंट है पैथोजेनेसिटी के, उसमें मोस्टली अल्कोहलिक सिरोसिस बहुत होता है ना। तो सबसे पहला साइन है फ्लूइड फिल, हालांकि उसमें कंफ्यूजन है कि इसको परकशन में ले कि पाल्पेशन में, लेकिन ये एसाइटिस का साइन है, ये आपको पक्का श्योर याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कट होगा कि आप पेशेंट को समझाएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने समझाया पेशेंट को कि मैं आपका ये एक साइन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर पेशेंट खुद का अपना एक मेजर हाथ अम्बिलिकस से नीचे अपने लीनिया अल्फा पे रखेगा, क्यों, ताकि जो एब्डोमिनल वॉल से जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, एनर्जी का, वो रुक जाए। अभी मैं क्या करूंगी, बीच में पेशेंट ने एनर्जी ट्रांसमिशन रोक दिया है ना, तो एक साइड मैंने हैंड अपना रखा है फील करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड, और मेरे मेजर, जैसे हम कैरम में ऐसे टिंग करके मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वैसे मैं अपने राइट हैंड से स्ट्राइक करूंगी और लेफ्ट हैंड से मुझे फील करना है कि वाइब्रेशन सामने की ओर जाता है कि नहीं। अगर पेट में पानी भरा है तो सामने की ओर वाइब्रेशन मुझे लेफ्ट हैंड पे फील होगा, तो मैं इसको बोलूंगी कि फ्लूइड फील हो रहा है, थ्रिल यानी वाइब्रेट होना। तो पाल्पेट जो होता है वो थ्रिल होता है, सुनता जो है वो मरमर होता है। ठीक है, सीवीएस में। तो अगर पेट के पेशेंट में अराउंड 500 से ज्यादा ml का पानी है, 50 ml 250 ml ऐसे नहीं पता चलता है, उस पानी के लिए आपको यूएसजी करना पड़ेगा, उस एसाइटिस के लिए यू हैव टू डू ओनली यूएसजी। पर अगर कुछ ज्यादा अमाउंट में पानी है 250 से लेके ज्यादा, तो आपको फ्लूइड फिल में पता चलता है सामने की ओर वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये था फ्लूइड फिल साइन। अभी हम करेंगे हॉर्स शू। तो हॉर्स शू यानी क्या, घोड़ा ने जब पग हो ना, घोड़ा ना पगे दाबला, तो वो जो घोड़े की नाल होती है वो कैसी होती है, यू शेप की। तो देखो आप इमेजिन करो कि पेट में बहुत पानी भर गया है, मोर देन 500 ml, तो क्या होगा कि इंटेस्टाइन तो हवा से भरे हुए हैं, तो वो इधर आके फ्लोट करेंगे, कौन से एरिया में, ये अम्बिलिकस एरिया में और ऊपर एपिगेस्ट्रिक एरिया में। बाकी के सातों जो क्वाड्रेंट है, जिसका मैं नाम बोलती हूँ कि ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रियम प्लस राइट लंबर, फिर ये राइट इलियाक फोसा, फिर ये इसके नीचे राइट
सॉरी ये सेंट्रल हाइपोगैस्ट्रियम सेम, ये लेफ्ट वाला सारे तीनों क्वाड्रेंट में पानी भर जाएगा। तो सेंट्रल सिर्फ 2 क्वाड्रेंट है जिसमें पानी नहीं भरा है, वहां पे इंटेस्टाइन फ्लोट है, तो वहां पे होगा वो टिम्पेनिक। और बाकी के सारे जहां जहां पानी भर गया है ना, तो दे इट पानी विल गिव यू अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड, तो इट विल गिव यू अ डल नोड। तो अभी देखो डल से टिम्पेनिक एलिशिएट करना बराबर क्या इजी है। तो थियरी में बुक में बाकायदा लिखा हुआ है कि टिम्पेनिक नोड में से या रेजोनेंट नोड में से डल एलिशिएट करना इजी है। तो आप हमेशा सेंटर में से साइड में जाइए। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये सूरज है, जैसे किरणें निकल रही है, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे टिम्पेनिक ही है ना एपिगेस्ट्रियम में। तो अम्बिलिकस से एपिगेस्ट्रियम नहीं जाएंगे हम, अम्बिलिकस क्वाड्रेंट से हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है ना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में फोकस करते हुए जाएंगे बराबर। तो जहां तक इंटेस्टाइन थे वहां तक टिम्पेनिक नोड था, और जैसे ही फ्लूइड चालू हुआ तो मेरे को एक डल नोड आया। अभी मेरे को यू शेप पूरे एब्डोमेन में बनाना है, तो मेरे को पॉइंट से उधर मार्क करना पड़ेगा। तो मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया है यू, ये एक पॉइंट मैंने ऐसे मार्क कर लिया है कि यहाँ पे मुझे एकदम टिम्पेनिक से मेरे को डल महसूस हुआ। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं राइट अम्बिलिकस से राइट की ओर पर्कस करते हुए मैं जा रही हूँ राइट लंबर फोसा की ओर, है ना। तो अगेन मुझे कहीं पे टिम्पेनिक में से, है ना, तो देखो जस्ट इमेजिन कि ये वाला टिम्पेनिक है बराबर। अभी मैं उस तरफ जाऊंगी तो कहीं पे इंटेस्टाइन खत्म होकर फ्लूइड चालू हो जाएगा पानी एसाइटिस का, तो वहां पे मुझे डल नोड महसूस होगा। तो आई विल अगेन मार्क दिस, सो दिस विल बी अगेन डल। तो जहां पे टिम्पेनिक में से डल साउंड चालू हो रहा है ऐसे में मार्क करके जाओगी तो मेरे पास 7 पॉइंट हो गए। कौन से वाले, एपिगेस्ट्रियम वाला क्वाड्रेंट में तो जा नहीं रहे हैं, तो अम्बिलिकस से हम कहाँ जाएंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम राइट लंबर, फिर इस तरफ नीचे की ओर जाएंगे तो दिस विल बी राइट इलियाक फोसा अगेन। फिर एक लाइन खींची हमने अम्बिलिकस से हाइपोगैस्ट्रियम की ओर, तो वापस हम इलिशिएट करेंगे टिम्पेनिक से डल, तो इधर एक और एक पॉइंट, ठीक है। वापस एक पॉइंट में पकड़ के राइट अम्बिलिकस से अगर हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इधर एक पॉइंट विल बी डल, ओके। अगेन हम अम्बिलिकस से पर्कस करते हुए लेफ्ट नंबर की ओर जाएंगे तो इट विल बी अ डल पॉइंट लेफ्ट, है ना, अगेन अ 1 पॉइंट। वापिस हम तो ऐसे करके मेरे को 7 पॉइंट मिलेंगे, और जब मैं 7 पॉइंट को जोड़ के एक शेप बनाती हूँ तो वो यू शेप बनता है, ठीक है। तो सेंटर में टिम्पेनिक साउंड क्योंकि वहां पे इंटेस्टाइन फ्लोट कर रहे हो, और साइड में ऐसा पूरा एक यू शेप, इसके लिए उसको बोला कि घोड़ाना पगना डाबला जेवो शेप, घोड़ाना पगनी नाड़ जेवो शेप, तो दैट इज अ हॉर्स शू शेप साइन। ये क्या बताता है कि प्लेट में पानी भर गया है और बीच वाले सेंट्रल एरिया में द इंटेस्टाइनल फ्लोटिंग विथ टिम्पेनिक साउंड, दैट्स इट, है ना। अभी एक साउंड, अभी ये करने के बाद है शिफ्टिंग डलनेस। यही सेम प्रिंसिपल कि पेट में पानी भर जाएगा तो फ्लूइड नीचे, इंटेस्टाइन फ्लोटिंग ऊपर। तो आपने एक पॉइंट लोकेट किया अपने हिसाब से, मुझे राइट साइड जमता है तो मैंने राइट लंबर एरिया में एक पॉइंट लोकेट किया जब टिम्पेनिक से डल हो गया साउंड, है ना, इंटेस्टाइन खत्म हो गया फ्लूइड चालू हो गया। अभी मैंने पेशेंट को उसके ऑपोजिट साइड, है ना, तो मैं पेशेंट ने એના ડાબા પડખા ઉપર લઈ લીધું, તો પેશન્ટ નું હાર્ટ નીચે છે, લીવર ઉપર છે। હવે 5 નાउ પેશન્ટ્સ on opposite side, okay, ready? So now fluid will shift downward. So what happened in right lumbar fossa, at some point where I have marked with a ball pen, there was first what, a dull sound because of fluid, but slowly the intestine will come upward and fluid will downshift, okay. So the dull point जहाँ पे fluid था वहाँ पे intestine है, it will be tympanic. So this is called shifting dullness. तो 3 साइड एसाइटिस की हो गई, है ना, fluid fill, horseshoe shape and shifting dullness.